one by one as a session in this playlist, whatever the playlist going to define today. So just watch and continue the session. And if you have any question, any doubt, just reply me on the comment box. So the session will be in Hindi and English also. But for your kind information, one thing I would like to clear that. So if you want to make a future in the SD S4 HANA module, any S4 S4 HANA module, communication skill should be strong. Like English, only you know the speaking in English. Otherwise, you cannot able to boost your career because the clients are mostly from the other country. So in that case, if you will join the any company or any MNC company, communication skills should be strong. But our video will be in the Hindi, and it will be you will be able to see in English also by changing the audio mode in the setting in the setting. So obviously, my channel is, as you know, everyone know that I am making a video in Hindi. So the SD module video will be also in Hindi, but you can watch in English by changing the audio. So let's start from today. S4 HANA SD module. So just I'm going to start right now. So this is the formal documents that help you to understand all these things. So what is the SAP? So everyone knows that the SAP is nothing but a feature and ERP. ERP stands for Enterprise Resource Planning. That's the main features is to optimize the resource utilization and give us the better output or increase the productivity. So SAP is known as System Application and Product in Data. So now I am going to start in Hindi because our user, our subscriber mainly with us due to Hindi. So going to start in Hindi. So just to but the parallelly I will include the Hindi as well as English. So one playlist will be in Hindi and another playlist will be in. So if you want to watch the video in Hindi, go with the Hindi playlist. If you want to watch in video in English, go with the English playlist. So keep watching, and if any question, any doubt, please reply me in the comment box or on my WhatsApp. My WhatsApp number is 519741. So let's start. So everyone know that ERP क्या है? Enterprise Resource Planning. Enterprise means what is the enterprise? Our industry, our company that is known as enterprises. Resource manpower machine and enterprise resource planning. आप किस तरह से अपने रिसोर्स को enterprise में प्लान करें ताकि उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नोन एज एंड SAP इज ऑल्सो एन ERP. SAP क्या है? एक ERP है. तो SAP स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा. System application product in data processing, the full form of SAP. Okay, so there are numbers in the SAP business one. uh, आपने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं हमारे फाइनेंस मॉड्यूल थे, उसके बाद आपका प्रोडक्शन मॉड्यूल था, सेल्स मॉड्यूल था, परचेज मॉड्यूल था. ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल. सिमिलरली इन द S4 HANA डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और सभी मॉड्यूल्स के अलग कंसल्टेंट. इवन में क्या था कि हमारे सिंगल कंसल्टेंट था जो पूरा सॉफ्टवेयर ईआरपी का टेक केयर करता था, शायद जीवन का टेक केयर. बट इसमें क्या है, शायद S4 HANA एक वाइड सेगमेंट की ईआरपी है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा डाटा कैप्चरिंग कैपेसिटी है और बिगर सेगमेंट की कंपनी यूज करती है. बिगर सेगमेंट मीन्स इसकी टर्न ओवर बहुत ज्यादा है, 1000 करोड़ ज्यादा है, तो वो कंपनियां यूज करती है. तो इसके लिए क्या होता है कि अदर्स एवरी मॉड्यूल्स के कंसल्टेंट होते हैं. तो जो ये फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं इसमें क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किए हैं. फर्स्ट SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, FI फाइनेंस, HR, उसके बाद CA, MM, PP, तो ETC. इस तरह से नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं इसमें.
क्वालिटी के भी हैं, उसके बाद आपको इसमें एमएमए डब्ल्यूईएम आ गया है, तो ये सारे चीजें इसमें है। उसके बाद आपका अरीबा है, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स डे टू डे इसमें इम्प्रूव होते जा रहे हैं। अभी जो बेसिक मॉड्यूल्स है उसकी हम बात, ठीक है। टेक्निकल्स में आप जाएंगे तो उसमें सैप एबैप एंड सैप बेसिक होते हैं। एबैप स्टैंड फॉर एडवांस बिजनेस, तो प्रोग्रामिंग होता है जिसमें कि हम टेक्निकली जैसे हम जीवन में एसक्यूएल और हाना सर्वर यूज करते हैं, वहाँ पे टेक्निकल हमारा होता है जो उसको कोडिंग करता है। सिमिलरली आप एस हाना में एबैप डेवलपर होता है जो हमें इसमें कोडिंग करता है, ठीक है। तो दो जो होते हैं, एक फंक्शनल होता है, टेक्निकल होता है। फंक्शनल ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के अलग अलग सभी मॉड्यूल्स हैं, एसपी के अलग होंगे, पाई के अंदर होंगे, पिको के अलग होंगे, पीपी के अलग होंगे, एमएम के अलग, तो इस तरह से अलग अलग क्या होगा आपके कंसल्टेंट हैं। तो मैं जो मॉड्यूल आपको कराऊंगा वो क्या है, एसपी कराऊंगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल ओनली कराऊंगा, कि मैं इसमें मेरी नॉलेज है तो मैं इसी का वीडियो इसमें बनाऊंगा। आगे फर्दर अगर कोई कंसल्टेंट हमारे चैनल से जुड़ता है तो फिर हम अगर देखेंगे पिको का, एमएम का वीडियो। लेकिन अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एसटी का कर रहा हूँ, तो उसके लिए वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें जो यूजर जो होते हैं वो हम जानते ही हैं, बिजनेस वन में जैसे था इंड यूजर था, सुपर यूजर था और सब सब कंसल्टेंट। इसमें तो तीन तरह के यूजर होते हैं। इंड यूजर, जो यूजर डे टू डे ट्रांजेक्शन करता है, जो एंट्री करता है आपके ऐप में, दैट इज नोन एज, ठीक है। पावर और सुपर यूजर जो जिसकी की ऑल राइट्स होते हैं, जो चीजें वो कर सकता है, दैट इज नोन एज पावर। सेल्फ कंसल्टेंट जो डेवलपमेंट करेगा, जो डेवलप करेगा। इसमें आपके अगर सर्वर देखेंगे तो चार तरह के सर्वर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेवलपमेंट सर्वर, सेकंड होता है आपका टेस्टिंग सर्वर, थर्ड होता है आपका क्वालिटी सर्वर, फोर्थ होता है आपका प्रोडक्शन और गो लाइव। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सर्वर होते हैं, तो पहले आप काम करेंगे डेवलपमेंट सर्वर पे, उससे से आप ट्रांसपोर्ट कोड के थ्रू तो जो भी आप काम करेंगे वो कैप्चर हो जाएगा। फिर वो जाएगा टेस्टिंग सर्वर में, टेस्टिंग सर्वर में अगर फिर क्वालिटी सर्वर है या फिर प्रोडक्शन सर्वर बोलते हैं। फिर उसके बाद जब फाइनल वो ओके हो जाएगा, सारे आपके क्लाइंट ओके कर देंगे, तब आपका प्रोडक्शन और गो लाइव सर्वर पे सारे डेटा चले, ठीक है। तो ये चार तरह के सर्वर होते हैं जो हम लोग जनरली सैप में यूज। अब अगर डाटा की बात करें तो डाटा हमारा किन फॉर्म में होगा। डेटा हमारा मास्टर डेटा हो सकता है, ट्रांजेक्शन डेटा हो सकता है और कस्टमाइजेशन डेटा। मास्टर डेटा में क्या आएगा, जैसे आपके आइटम मास्टर होंगे, कस्टमर मास्टर होंगे, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट होंगे, तो ये सारे आपके मास्टर डेटा का। अगर आप B1 में जानते हैं, B1 की आपकी नॉलेज है, तो आप मास्टर से और ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर। ट्रांजेक्शन डेटा की बात करें तो जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि ऑर्डर होता है आपका, डिलीवरी होता है या पीवीआई होता है इसमें, या फिर आपका इनवॉइस होता है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन डेटा कहलाता है। कस्टमाइजिंग डेटा क्या होता है कि जो भी आप कस्टमाइज कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड फीचर्स नहीं है, जो उसको आप इंक्लूड कर, दैट इज नोन एज आपका कस्टमाइज। अभी हम सर्वर की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे सर्वर देख सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सैप डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग सर्वर, उसके बाद आपका क्वालिटी सर्वर एंड देन प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। तो ये चार तरह के सर्वर होते हैं। पहला डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, उसके बाद क्वालिटी एंड प्रोडक्शन और प्रोडक्शन या गो लाइव सर्वर जिसको बोलते हैं। तो ये सर्वर होते हैं, पहले इस पे डेवलपमेंट होता है, फिर इसकी टेस्टिंग होती है, देन क्वालिटी टेस्टिंग होती है, फिर प्री प्रोडक्शन क्लाइंट से सारा जाके हैंड ओवर करते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होंगी ये सारी चीजें से डेवलप हो गई, और फाइनली हम लोग लाइव सर्वर पे आते हैं। तो ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। जो भी डेवलपमेंट होगा हमारा सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम में होगा, उसके बाद डेटा मिग्रेट होगा टेस्टिंग सर्वर में, देन क्वालिटी सर्वर में एंड प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। इसके लिए क्या होता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे एक ट्रांसपोर्ट कोड जनरेट होता है, उस कोड के थ्रू हमारा एप डेवलपर होता है, उस कोड के थ्रू डेटा को पूरा वो कैप्चर कर लेता है और इजिली आपको सर्वर, जैसे कि आप D1 में यूज करते हैं डेटा बैकअप करते हैं, ये बैकअप का ये पूरा प्रोसेस, सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम, उसके बाद सेल्फ क्वालिटी सर्वर, ये चीजें आपको पता है जो डिफरेंट डिफरेंट। अब इसमें आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अगर देखेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सबसे पहले इसमें जो बनता है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे आप सैप D1 में और ST में टोटली डिफरेंट,
आप B1 की बात करें या S4 HANA के किसी भी मॉड्यूल की बात करें, दोनों अलग ही हैं, तो इसीलिए उसमें कंफ्यूजन ना करें कि सैप B1 और ये, आप अगर B1 जानते हैं तो S4 HANA में के बारे में आप जीरो हैं, अगर आप S4 HANA जानते हैं तो B1 में आप, तो अगर कोई कंसल्टेंट S4 HANA का है, आप उसको B1 में हायरिंग हो गई है, तो B1 के लिए फिर वो एज अ फ्रेशर है, उसको फिर से पूरा सीखना पड़ेगा। अगर B1 कंसल्टेंट S4 HANA के किसी भी मॉड्यूल पे अगर वो हायरिंग हुई है उसकी, तो उसके लिए वो फ्रेशर है, उसको फिर से सारी चीजें तो स्टडी करनी पड़े, सारी चीजें सीखनी। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री में अगर कंसल्टेंट आप हायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके यहाँ जो स्टैप लगा हुआ है कौन सा आप स्टैप यूज कर रहे हैं, एस4 हाना यूज कर रहे हैं या फिर आप सैप B1 यूज, अगर आप सैप बिजनेस वन यूज कर रहे हैं तो ओनली सैप बिजनेस वन कंसल्टेंट को हायर करें, या फिर ऐसा कंसल्टेंट हायर करें जिसका एक्सपर्टाइजेशन B1 में भी, सैप बिजनेस वन में भी है और एस फोर हाना के किसी और मॉड्यूल। बट हाँ ये है कि जो शायद बिजनेस वन का कंसल्टेंट है, उसको बिजनेस आइडिया है, आपके बिजनेस आइडिया को समझ के वो एस फोर हाना का इंटीग्रेशन करवा सकता है, कर तो नहीं सकता बट कंसल्टेंट के थ्रू करवा सकता है। बट अगर आपने एस फोर हाना या किसी भी मॉड्यूल के कंसल्टेंट को हायर कर लिया, वो B1 में काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पार्टिकुलर मॉड्यूल्स की नॉलेज, लेकिन B1 का जो कंसल्टेंट है उसको ओवरऑल सारे मॉड्यूल्स की नॉलेज है, और वो हार्डली 10 से 15 दिन में आपको किसी भी मॉड्यूल पे काम करना हो शुरू, इजिली वो कैचअप कर लेगा, चीजों को अंडरस्टैंड कर लेगा। बस उसको स्क्रीन समझना है, कहाँ से क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, और वो इस चीजों को अंडरस्टैंड, ठीक है। तो B1 वाला इस पर हाना में काम कर सकता है थोड़ी सी एफर्ट लगा के, बट S4 वाला B1 में काम नहीं कर सकता जब तक कि वो उसको स्टडी अच्छे से वो लर्निंग नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, वो हमें डिजाइन करने पड़ते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हमारे शायद बिजनेस वन में कंपनी होता था, कंपनी के अंदर में ब्रांच होते थे, मल्टीपल ब्रांच बनाते थे, तो वो सारी चीजें इसमें डिजाइन कर, कंपनी क्या है आपका, कंपनी जैसे उसमें होता था, कंपनी कोड लाइक अ ब्रांच जैसे वहां पे होता था। क्रेडिट कंट्रोल एरिया यहाँ पे डिफाइन करने पड़ते हैं। फिर आपका बिजनेस एरिया क्या है, किस किस तरह के बिजनेस करते हैं आप, सोलर में काम करते हैं या फिर आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्रोडक्शन का, तो इस तरह की चीजें आपको बिजनेस डिफाइन करने पड़ेंगे। क्रेडिट कंट्रोल एरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर को क्रेडिट अगर आप देते हैं तो वो आप डिफाइन करना होगा, तो वहां से वो कंट्रोलिंग होगा। ये जो है आपका एसपी, तो ये सारे पार्ट जो होते हैं वो पीको का पार्ट, एफआई का पार्ट। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एसपी का पार्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड होगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेगा, डिवीजन बनेगा, सेल्स एरिया बनेगा, सेल्स ऑफिस बनेगा, सेल्स ग्रुप बनेगा, तो ये सारी चीजें हमें उसमें डिफाइन करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद हम उसमें प्लांट स्टोरेज लोकेशन, ये एमएम का पार्ट होता है, ये सारे जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, अगर आप देखेंगे ये फ्लो चार्ट हमने बना रखा है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल इम्पैक्ट दिखाता हूँ आपको कि थ्योरेटिकली क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करूँगा, फिर हम लोग सिस्टम पे आ जाएंगे। ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेड कर रखा है, तो क्या होता है, कंपनी क्या है, अगर कंपनी की बात करें, it represents a corporate group where we are implementing any software like SAP with the client is highest it is also known as highest organization unit. It is the enterprise structure, technically term जो होगा इसका आरकॉम कहलाता है। कि कंपनी जो होता है सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, और इसके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपनी वगैरह, सपोज दैट जैसे कि हमने कोई एक कंपनी डिफाइन कर लिया टाटा कंसल्टेंसी, इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड बना दिया, टाटा के अंदर में टाटा कंसल्टेंसी आ गई, टाटा मोटर्स आ गए, और ये सारे कंपनी कोड, लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाटा है, तो टाटा सबसे ऊपर है, ठीक है, तो ये टाटा कहलाता है। तो इस तरह से हमें ये कंपनी डिफाइन,
अब उसके लिए क्रेडिट कंट्रोल एरिया, जो भी क्रेडिट हम मैनेज करेंगे कस्टमर को साथ, तो हम उसको क्रेडिट डिफाइन करेंगे, इस क्रेडिट कंट्रोल एरिया के अंडर डिफाइंड होगा। ये सारी चीजें इसमें हमें डिफाइन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ये सारी चीजें अब आप यहाँ पे जब करेंगे। देखिए यहाँ पे एक हमने फ्लो चार्ट, सबसे पहले ये हमारा हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या बना, कंपनी बना। कंपनी के अंदर में हमने क्या बनाया, कंपनी। अगर आप यहाँ पे देखें 1:m बताया, मतलब कि एक कंपनी के अंदर में मैनी कंपनी कोड हो सकते हैं। जैसे हम जीवन में एक कंपनी के अंदर में नंबर्स ऑफ ब्रांच बनाते थे, उसी तरह से हमारा क्या होगा यहाँ पे नंबर्स ऑफ कंपनी कोड बन। और इस कंपनी के लिए क्या हो सकता है, नंबर्स ऑफ बिजनेस एरिया हो सकता है। वो ये अपना बिजनेस पेट्रोलियम में भी करता है, जैसे रिलायंस की बात करें, पेट्रोलियम में भी बिजनेस कर रहा है। ये आपका ई मार्केट, ई कॉमर्स में भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन में भी बिजनेस कर रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट बिजनेस एरिया। तो इसीलिए ये क्या होगा, 1:, में एम करने का मतलब है कि 1:1 एम, इस एक कंपनी के मैनी बिजनेस क्या हो सकते हैं, एक कंपनी के मैनी कंपनी कोड हो सकते हैं। और क्रेडिट कंट्रोल एरिया एक कंपनी के मैनी क्रेडिट कंट्रोल। तो दीज आर नोन है, ये क्या है, ये आपका एफआई का पार्ट। तो ऊपर आपने देखा, ये आपका एफआई का पार्ट है। अब इसके इस कंपनी के अंदर हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड एक ये जो सेल्स, उसके बाद ये डिवीजन है। अब एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के मैनी सेल्स और कंपनी के अंदर में मैनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। और एवरी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे और उसके डिवीजन होंगे। इसका मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन क्या है, मैनी इज टू मेनी, मतलब मैनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के मैनी डिवीजन, M:M चलता है, ठीक है। और इसके अंडर में फिर सेल्स जब डिवीजन बनेगा तो डिवीजन के अंदर सेल्स ऑफिस बनेगा, सेल्स बनेगा। तो इस तरह से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि आप जो सेल्स कर रहे हैं, जो आपकी सेल्स यूनिट होगी, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंपनी है, उसने अपना अपना ब्रांच बनाया, उस ब्रांच के अंदर में कोई नोएडा में अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, कोई अपना बेंगलोर में बनाया है, कोई मुंबई का। इस तरह से नंबर डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उसके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। आप उसके अंदर में नोएडा वाले के अंदर में 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिवीजन हो सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको डिफाइंड करने पड़ेंगे। और अगर इसमें अगर आपने फिर उस डिवीजन के अंदर में फिर क्या होगा, जो सेल्स एरिया आपने बनाया, इसकी कंप्लीट जो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग सेल्स एरिया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, चैनल एंड डिवीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स एरिया। इसी को हम लोग सेल्स एरिया बोलते हैं। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया। और इस सेल्स एरिया के सेल्स ऑफिस होंगे, फिर सेल्स ग्रुप होंगे। वो सेल्स ऑफिस मैनी टू मैनी होंगे, और सेल्स ग्रुप जो होगा 1:मैनी। और इसको ये पूरा जो सेक्शन कहलाता है, ये क्या होता है आपका एस टी के अंदर। ये मैंने बताया एफआई के अंदर में, ये आपका एस टी के अंदर। अब इस कंपनी कोड से क्या होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्शन प्लांट होंगे, क्लाइंट कनेक्टेड होंगे, तो प्लांट होगा, ठीक है। उस प्लांट के अंदर में स्टोरेज लोकेशन होगा, जहाँ पे मटेरियल प्रोडक्शन के बाद स्टोरेज होता होगा। फिर उसके बाद जब मटेरियल आप डिस्पैच करते होंगे, तो उसके लिए आप शिपिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, और उस शिपिंग पॉइंट को आप लिंक करेंगे साथ लोडिंग पॉइंट। तो ये जो पूरा पॉइंट होता है, ये जो आप पार्ट लिख रहे हैं, ये एमएम के अंदर। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि प्राइमरी इंटरफेस एफ आई और एस डी और एमएम के साथ कहाँ होता है, तो एफ आई और एस डी और एमएम के साथ प्राइमरी जो आपका इंटरफेस को जहाँ पे मैपिंग होता है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम पे चलेंगे और सारे कंपनी को एक 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 स्टार्ट करके हम स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से करेंगे, तो इस सारी चीज के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, आपको उसमें पाथ भी मिलेंगे और सारी चीज। यहाँ पे हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये कंपनी, ये तो हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है डिफिनेशन वगैरह हमने किया है, क्या है ये कंपनी को कैसे बनानी है, सभी कोड को बना के हमें सेव करना है। तो एक स्ट्रक्चर मैं एक्सेल में बना लेता हूँ, आप उसी स्ट्रक्चर में यहाँ। तो अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इसमें मैंने सारे पाथ डिफाइन कर दिए, चारों पाथ सारे मैंने इसमें डिफाइन कर रखे हैं।
आप यहाँ पे डिफाइन। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफ आई एस्टिमेट। किस तरह से अगर मैं इस फ्लो चार्ट का समरी बनाऊं, ये जो आप फ्लो चार्ट देखते हैं इसका समरी बनाऊं, तो ये समरी मैंने इसको बना, ये चीजें हमें बनानी है, ठीक है। और बना के अब हम इसकी लिस्टिंग, सबकी हम लिस्टिंग करते जाएं, तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल सीट बना रखा है, ताकि इसको हमें फ्यूचर में याद रखना जरूरी। अगर हमें याद नहीं रहेगा तो फिर हम इसकी मैपिंग, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लिया जो मैंने पहले से बना रखा है, इसी में मैं आगे कंटिन्यू करता जाऊंगा। जो पहले से बने हुए उसको मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे, और एक नया सीट में ये आपको समरी रखना है। मैंने यहाँ भी सीट जो बना रखा है उस हिसाब से बना रखा है, FISD और ये करके इस हिसाब से मैंने आपको सेशन में बताया। यहाँ पे मैं एक न्यू सीट करके सेव एज कर लेता हूँ नया, और इसको मैं SD करके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यू मैंने अलग इसको सेव कर लिया, ताकि उस जो पहले से डॉक्यूमेंट है उसको खोल सके। अब ये सारी चीजें हमें बनानी है, तो हम यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हम यहाँ पे जहाँ भी ये बने हुए हैं इन सबको मैं हटा देता हूँ। तो पहले मैं जैसे जैसे बनाता जाऊंगा यहाँ पे मैं, और तीनों को मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। तो मैंने इसको कर दिया, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ये आपका पिको पार्ट है, पिको पार्ट की को इससे, ठीक है। SD हमारा मेन कोड है कि हम सेशन कर रहे हैं, SD के लिए हमारा ये है, तो है, एंड देन हम आ जाएंगे कर देते हैं। इसको बनाने से क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग पेपर बनेगी, कभी भी किसी, ये बार बार इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप उसको नहीं रखेंगे याद, तो फिर आप भूल जाएंगे, तो आगे डॉक्यूमेंट वगैरह जो ऑर्डर वगैरह जो बनाएंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको करना जरूरी है, मैं आपको ये चीजें रिकॉर्ड में रखना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम पे। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे इसको हम उसी हिसाब से अपडेट करते जाएंगे। अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये यहाँ पे हमें और रखना है, एक्सेल मेंटेन करना है आगे फ्यूचर में जो इसकी। अब हम अपने सिस्टम पे आ गए, ये हमारा क्लाउड सिस्टम हमने लॉगिन कर रखा है। सबसे पहले इस पे जब भी एक कंसल्टेंट होगा वो SPRO पासबुक ही काम करेगा। यहाँ पे आप आएंगे, लॉगिन कैसे करना है वो पहले मैं बताऊँ। आपको एक ID पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। आप उस ID पासवर्ड को थ्रू करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही आप क्रेडेंशियल डालेंगे, RDP लॉगिन डालेंगे, ऐप लॉगिन दिखेगा, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जिससे भी सर्वर ले रखा है और इस तरह से करके आपको देगा। आप यहाँ पे आएंगे, अपना ID डालेंगे और पासवर्ड, जैसे मैं यहाँ पे ID डालता हूँ, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले हमें क्या डालना है, SPR, ये हमें यहाँ पे SPRO, जब आप SPRO लिखते हैं उसके बाद यहाँ पे SPRO रेफरेंस को क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर में जितने भी फील्ड हैं वो सारे field। अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है, जो आपको हमने ये जो चार्ट दिखाया था इसको हमें सिस्टम में कम्प्लीटली डेवलप, तो डेवलप करने के लिए आप यहाँ पे आइए। सबसे पहले आप जाएंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए दो सेक्शन आ रहा है, डिफिनेशन एंड असाइन।
तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पे जाएंगे। डिफिनेशन पे जाने के बाद यहाँ पे अभी देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एक एक करके हम चेकिंग करें। सबसे पहले हमारा एफआई के अंदर में क्या था, अगर आप एफआई के अंदर में देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये सारे सेक्शन, ये सारे हमें एफआई के अंदर में मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने एफआई लिख रखे हैं, ये हमें मिलेंगे एफआई के अंदर। तो सबसे पहले जो रेड कलर से हमने रेक्टेंगल बना रखा है, इसको हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे आ गया डिफाइंड कंपनी, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये, अब यहाँ पे आपको एक कंपनी कोड डिफाइन करनी है, ठीक है। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसमें स्टैंडर्ड कुछ बने हुए हैं तो उससे आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, नहीं अगर बने हुए हैं तो आप अलग से भी डिफाइन। देखिए इसमें कंपनी स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से अगर देखें, स्टैंडर्ड जो प्रोसेस होता है वो आपका 1 होता है या फिर 1000 होता है। तो इसमें कंपनी कोड के लिए आपको न्यू में ही जाइए, न्यू में जाके आप हालांकि मैंने इसमें अपनी एक कंपनी बना रखी है, आप देखेंगे इसमें मैंने एक कंपनी बना रखी है। ये मैंने कंपनी बनाई। अगर मैं इस पे देखूँ तो सेलेक्ट किया तो डबल क्लिक किया, सारे डिटेल्स बस ये आ ठीक है। तो इंडिया में है भारत है, तो आप इस तरह से ही आपको दूसरी के कंपनी को बनाना है। तो मैं कंपनी को बनाता हूँ, क्या कोई इंडियन कंपनी है उसी से जाकर फिर मैंने कॉपी किया और मैंने इसको, जो कॉपी है इस पे मैंने अभी आया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना कोड में डाल, अब कोड में डालता हूँ, उसका जो कोड है वो मैं डालता हूँ R101 है, तो मैं डाल दूंगा सॉल्यूशन। मैं अपनी कंपनी का इसका मैंने कोड डिफाइन कर दिया, मैं इसमें कोड डिफाइन कर इसका जो नेम ऑफ द कंपनी शॉर्ट नेम AMD कर दिया है। तो मैं कोड भी AMD ही रखता जरूरी है, मैं इसमें AMD का हूँ कंपनी कोड, ठीक है। एड्रेस मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ, आप इसको कर दीजिए गाजियाबाद। ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है, क्योंकि सिस्टम में जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, ये मैंने डाल दी। अब इसको मैंने यहाँ पे ग्रीन जो बटन है इसे मैं चेक करूंगा ये डेटा पर। अगर सपोज दैट यहाँ पे पहले से AMD कोड रहता, ये बोलता कि ऑलरेडी पहले से है ये आप, अब मैं इसको ऐड कर यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा ये डेटा, अब ये देखिए ये हमारा आया ट्रांसफर, ये मैंने पहले से बना रखा है, जो मैंने काम किया है वो। अब इसके लिए मैं अलग से एक ट्रांसपोर्ट, ये जो आप देख रहे हैं प्रमोट फॉर द कस्टमाइजेशन रिपोर्ट, ये हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो कोडिंग होता है ये हमारा यहाँ पे जाके के लिए मैं अपना एक डिफाइंड करूंगा ब्लैंक, यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ AMD न्यू प्रोजेक्ट, ताकि हमें ये पता चले इस प्रोजेक्ट का ये ट्रांसपोर्ट कोड जो बन रहा है सब दोस्तों, इसमें ये सारी चीजें जो मैं कस्टमाइजेशन करूंगा, जो भी कर रहा हूँ मैं डेवलपमेंट, ये सारे के सारे इस कोड में, ये इस यूजर के अंदर, इस कोड के अंदर ये सेव। अब मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये देखें ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट के अंदर में आ गया कस्टमाइज रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको यस कर दूंगा तो ये, अब जो हमने कंपनी कोड बनाया AMD वो हमारा सेव सेव हो जाने के बाद, दैट मीन्स जब भी आप बनाएंगे अपनी कोई भी कहीं पे भी अगर कंपनी की रिक्वायर्ड होगी तो ये आप कंपनी यूज करें, ये कंपनी कोड जो कि मैंने बनाया है इसको आप यूज करें, ठीक है।
अब हम चलते हैं, कंपनी कोड बना दिया हमने, बैक जाएंगे, यहाँ से ये बैक बटन है, इससे हम बैक जाएंगे। कंपनी बनाने के बाद क्या है, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल है। तो जनरली आप सेम ही नाम रखते, आप चेंज डिफरेंट डिफरेंट नाम रखेंगे तो भूल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सेम ही नाम को मेंटेन। तो यहाँ पे मैं न्यू डिफाइन करना है क्रेडिट कंट्रोल के लिए, तो हम यहाँ न्यू पे आएंगे। आप चाहें तो इसे सेलेक्ट करके, ये स्टैंडर्ड है, इससे आप कर सकते हैं। जनरली कॉपी करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि अगर आप कॉपी करेंगे तो कॉपी कंट्रोल में ये प्रॉपरली काम करेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं कॉपी करते हैं, अपने मन से बनाते हैं कोई भी चीज, अगर कॉपी कंट्रोल से तो बाद में एरर होगा। तो आप कोशिश कीजिए कॉपी करने। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ AMD, हमारा करेंसी क्या होगा, INR। ये चीजें चेंज करनी है, कॉपी करने वक्त ना भूल जाइए कि आप पता चला कि आपने करेंसी यूरो छोड़ दिया, फिर उसके इसमें प्रॉब्लम है। ये आप देखिए यहाँ पे ओपन ऑर्डर वैल्यू ऑन द टाइम मिक्सेस डिलीवरी एंड द बिल, मैं इसी को रहने देता हूँ, इसको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है क्या। अब आते हैं फाइनेंशियल वेरिएंट, ये वेरिएंट चेक कर लेते हैं कि वेरिएंट अप्लीकेबल होगा। अभी V3 लगा हुआ है, V3 में आप देखेंगे यहाँ पे V3 में क्या आ रहा है, आपको फाइंड करना है। तो सेलेक्ट किए, वेरिएंट को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। वेरिएंट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे V3 हमारा जो अप्रैल टू मार्च एंड फॉर स्पेशल पीरियड है, ये वही पीरियड चल रहा है, तो परफेक्ट है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर। अब हम इसको चेक करेंगे तो क्या कहता है, ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये हमारा डेटा परफेक्ट है। यहाँ पे आगे अब हम इसको सेव करें, जैसे ही सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे वही देखिए जो ट्रांसपोर्ट कोड था, रिक्वेस्ट कोड, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट कोड, ये आ गया। अब ये IMD प्रोजेक्ट का है। ये सपोज दैट आप एक ही डेटाबेस के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट कोड क्लिक कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट कोड अलग अलग बना के देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया बन गया। अब आप यहाँ पे उस जो कंपनी कोड आपको बनानी है, अभी आपने क्या बनाया, कंपनी बनाया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया, तो मैं यहाँ पे मेंटेन कर, जो मैंने एक्सेल मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ। तो मेरा कंपनी कोड क्या है, कंपनी कोड हो गया हमारा AMD, कंपनी हो गया AMD, क्रेडिट कंट्रोल एरिया हमारा हो गया A। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा यहाँ पे उसको मेंटेन करता जाऊंगा, ताकि फ्यूचर में फॉरगेट ना हो जाए, मैं भूल ना जाऊँ। अब इस पे आता हूँ डिलीट। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कंपनी कोड, क्योंकि डिलीट एंड चेक कंपनी कोड एडिट, तो मैं यहाँ पे कंपनी कोड अभी हमने बनाया नहीं है, यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, उसके नीचे वाला ऑप्शन इसमें ये है, यहाँ पे आपको कंपनी कोड बनाना है। आपने कंपनी बनाया, क्रेडिट कंट्रोल या कंपनी कोड नहीं, तो हमें कंपनी कोड वाला यहाँ पे न्यू दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंडियन कंपनी के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे रहा है, या आप टेस्ट वाला ये इसको आप ये आप यहाँ पे आइए और इसको कॉपी कंट्रोल से खुद, अब ये आया, यहाँ पे आप अपना कोड चेंज कर लीजिए। तो आपका कंपनी का क्या नाम था, हम AMD था, AMD ही यहाँ भी बनाएंगे। कोड आप डिफरेंट रख सकते हैं, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ हम क्यों रख रहे हैं, वो इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें आगे इसको मैं भूल न जाऊँ, आगे हमारा ये सेम ही रहे, इसीलिए मैं इसको। अब यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ, कंपनी अंबिका, ठीक है। सिटी आ गया है, डाल देंगे। कंट्री रजिस्ट्रेशन इंडिया, करेंसी INR हो गया, मैं इसको लिख लूँ। अब ये बोल रहा है कि आप ये सारा एड्रेस जो है इसका अच्छे से आप उसको भरिए। तो ये कंपनी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंबिका एनर्जी, अंबिका एनर्जी डाल देता हूँ। मैं बस आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है।
सर्च जो है हमारा AMD से होगा। मैं एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस क्या था हमारा, मैंने डाला था ये सारे, ठीक है। रीजन, अगर रीजन में आप देखेंगे तो इसमें जो रीजन आता है इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसा कि गाजियाबाद यूपी में पड़ता है, तो हमें स्टेट को बताना है कि रीजन। तो रीजन अगर इसमें आप चेक करेंगे तो 24 पे हमारा यूपी है। मैंने इसको किया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको जो भी फिल करना है आप इसको न कीजिए, आप इसको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप एक्चुअल ये प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप जरूर सारे डेटा देखो, टैक्स क्या है, ईमेल क्या है, एवरीथिंग। ऐसे मैं डालता हूँ इंग्लिश है, इसमें टेलीफोन में डाल देता हूँ 01235652 ठीक है। जो अंबिका एनर्जी का एक्चुअल में है नंबर, तो मैं एक्चुअल डाला 8700486706, यदि अंबिका का ही है। उसके बाद मेल भी मैं डाल देता हूँ एनर्जी डॉट सोल्यूशन रेट ऑफ, ये इस तरह से मेल डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड मेथड टैक्स जो भी है वो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है और इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, आपका डेटा बन गया। अब आप इसको यहाँ पे सेव करो, कस्टमाइज कोड जो आपने बना रखा है उसको जाके जाएगा सेव करो। मैंने कस्टमाइज रिक्वेस्ट को सेव कर दिया, हमारा कंपनी बन गया, कंपनी कोड बन गया, क्रेडिट कोड एरिया। तो अभी आप देखेंगे हमारा जो एप्लाई का जो पार्ट था उसमें उसका ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं चेक कर लेता हूँ, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ हमने कंपनी कोड क्या बनाया, एक एमडी बना दिया, तो इसको मैं मेंटेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट्स में हमने जैसे कंपनी बना लिया, कंपनी क्रेडिट, अभी बिजनेस एरिया में बिजनेस एरिया होगा तो अब हम देखते हैं। मुझे लग रहा है सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, मैंने क्लाउड ले रखा है। आज मैं ज्यादा इतना कराऊंगा ताकि आप ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बन जाए, या फिर आगे में ये हमारा डेटा वर्ड सही है। अब चलते हैं, ये हमारा काम होगा। तो इसको अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये डिफाइंड बिजनेस, सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप SPRO पास किए आएंगे तो सारे बंच आपको एक ही जगह, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है। तो आप डिफाइंड बिजनेस एरिया पे आ जाइए। अब बिजनेस एरिया क्या है, बिजनेस एरिया सपोज दैट अंबिका एनर्जी है, सोलर में बिजनेस करती है, अंबिका एनर्जी आपका ERP में बिजनेस करती है, अगर या फिर एजुकेशन में बिजनेस करती है, तो वो हमें बिजनेस एरिया को भी, ठीक है। तो मैं अब बिजनेस एरिया डिफाइन, बिजनेस एरिया डिफाइन करने के लिए आप इसको चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं अगर कॉपी करना चाहते हैं तो स्पेस में ही बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉपी कंट्रोल चलता है। तो कुछ आप देखेंगे तो सिंपल ही। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिजनेस एरिया डिफाइन करने के लिए कोड जो डालता हूँ AMD1, ठीक है। ये हो गया आपका बिजनेस एरिया। मैं डिफाइन करता हूँ पहले सोलर एनर्जी, ये हमारा एक बिजनेस एरिया डिफाइंड हो गया। इसको मैं सेव, अगर कंपनी का एक ही बिजनेस एरिया है तो ये, अगर मल्टीपल बिजनेस एरिया है तो फिर आप दूसरा बनाएंगे। आप न्यू पे आइए, न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो एक ही बार में कई बिजनेस एरिया आपका, क्योंकि आपने वहां पे कॉपी किया था। अब यहाँ पे AMD2 मैंने डाल दिया है, ये हो गया एजुकेशन,
आपका बिजनेस एजुकेशन में है, ठीक है। उसके बाद AMB3, इस तरह से जितने भी आप बनाना है बना सकते हैं। दूसरी मैं इसका डाल देता हूँ एजुकेशन के अलावा एजुकेशन हो गया, आपका सोलर हो गया, एंड अब मैं एक और डाल देता हूँ कंस्ट्रक्शन। इस तरह से जितने भी बिजनेस एरिया है सारे बिजनेस पे डिफाइन। सिंपली सिस्टम क्या चेक करता है कि इस बिजनेस एरिया में सेम कोड का बनाना हो, ये आपको इसको मैंने सेव कर दिया तो हमारा ये बिजनेस है। अब बिजनेस एरिया के बाद अगर आप देखें तो यहाँ तक आपका फीको का पार्ट, इसी तरह से हम SP में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमें डिफाइन करना है वो डिफाइन करेंगे। अब ये हमारा सेव हो चुका है, डेटा ऑलरेडी सेव। बैक चलेंगे के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सारे बिजनेस है। अगर आपको सपोज जो बिजनेस एरिया बनाया है वो चेक करना है तो सिस्टम पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने कोड डाल दिया MB1, तो ये जैसे ही इंटर करेंगे तो हम दिख जाएगा। MB2 आप करेंगे तो सारे बिजनेस हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे, अपना एक्सेल मेंटेन करते हैं, हमारा बिजनेस एरिया क्या है। तो बिजनेस एरिया जो हमारा बना है वो हमारा है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये MB1, MB2, MB2 का क्या है हमारा एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सर इसको मैं 2 करता हूँ, तो ये 2 है आपका, ये 3 है आपका कंस्ट्रक्शन। इस तरह से हमारा क्या हो गया, जो FI का पार्ट है जो हमारा। एक दो और चीजें सेगमेंट बनाने का, जब क्रेडिट कंट्रोल एरिया आपका एक्टिव होगा तो यहाँ पे आप बना सकते हो। तो आप डिफाइन बिजनेस एरिया कर लिया, फंक्शनल एरिया भी कर सकते हैं, मेंटेन बिजनेस एरिया, मेंटेन डिफाइंड सेगमेंट, ये भी आप, ये सेगमेंट आगे जरूरत पड़ेगा, प्रॉफिट सेंटर वगैरह ये सब क्या है का पार्ट है, ये हमारा पार्ट नहीं होता है। तो आप जो भी चीजें बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बट जो जिस कंसल्टेंट का वर्क है आप उस पर रहने दें, उसको करने की आपको जरूरत नहीं। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जो हमारा फीको वाला पार्ट फाइनेंशियल था इसमें से हम जाए। अब देखिए यहीं पे आपको दे रखा है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा मेन काम किसका है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जाएंगे, इसमें आने के बाद हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे देखिए डिफाइन कर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद फाइंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्लिक किया, क्या आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन किया, कॉपी पेस्ट हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि ये जो बाकी फीचर्स है वो सारे कॉपी हो जाए। अगर आपने पेस्ट लिया तो उसमें ये चीजें नहीं आए, कोशिश कीजिए कि आप कॉपी पेस्ट ही आप उसमें चेक करना। ये MB ले जाना कॉल, ये मैंने इसका नाम डाल दिया, ठीक है। बाकी चीजें मैं एज इट इज जो है करके ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज छोड़ दूंगा, ठीक है। जो हमारा प्लांट है उसकी लोकेशन है सारी जगह आएंगे, तो इसको मैप करेंगे। ये करने आपको ये चेक करना है कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैलेंडर IM होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी चीज यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे फीस जैसे आपने कंपनी में डिफाइन किया था उसी हिसाब से यहाँ पे आपको दी, ठीक है।
हम्म, ये हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद के बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, देन आप सेल्स ऑफिस, जितने भी मैंने वो फ्लो चार्ट में दिखाया सारी चीजें डिफाइन करनी है बनेंगे। तो इस तरह से आपको सारी ही चीजें, तो आपको हमेशा रिमेम्बर में रखना कि कॉपी कंट्रोल होनी चाहिए, जो भी चीजें बनानी है कॉपी कंट्रोल चाहिए। सपोज दैट अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, यहाँ पे कोई इंडियन है तो उसको आप सिलेक्ट करें, तब आपको, तो अगर गलती हो जाए तो फिर आगे ये चीजें, अगर आपको इसको कुछ चीज करना है या फिर उसमें चेंज करना है तो आप, उसके बाद हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना है तो उसके समय मैं हमको दिखा कि हमने एक एमबी लिया था तो 2 डिजिट का यूज था, ज़्यादा डिजिट का इसमें 2 ही डिजिट का हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर आपका ये 0 1 जाए, तो 1 0 या 0 1 ये जो आपका, ये आपका स्टैंडर्ड है। तो इसको भी अगर नहीं इसमें कॉपी करने की जरूरत नहीं, तो पास कॉपी नहीं है, डायरेक्ट आप ईजी में जाएंगे और यहाँ पे चैनल दिखाएं। तो मैं एक दो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ए एम है, ए एम ऑलरेडी है तो ये लेगा नहीं, हमें क्या करना होगा, हम लेंगे यहाँ पे एम भी है, तो हमें ऐसा डिफाइन करना है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो इस केस में मैं 0 1 देखूँ, 0 1 भी है, 0 1 0 1 भी है डायरेक्ट डायरेक्ट। तो ऑलरेडी इसमें है, ऐसा डिजिट देखना होगा जो इसमें, के लिए क्या करना होगा, हम इस सर्च बटन पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या क्या इसमें। देखिए ये प्रैक्टिस सर्च, यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉम्बिनेशन, बट जब आप नए सर्वर पे काम करेंगे तब स्टेटअप करेंगे तो उसमें इतने नहीं बनेंगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही इसमें, तो इसलिए वहाँ पे आपको देने की, बस आप यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है।
मैं यहाँ पे Z1 देखता हूँ, Z1 भी है, A Y A Z I has ये हम ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ए एम बी, ये मैं तो नाम दे देता हूँ, है, या फिर आपका है सेल ए एम बी। दूसरा जेड जेड हैज है जेड वन भी है, जेड टू एस वी है, ये नहीं, ये हमारा चल रहा है कंट्रोल। इस तरह से हमने क्या किया, दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दिखा। अब मैं तो, तो आपने क्या क्या कर दिया, अभी आपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब इसको आप नोट कर ले, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर ये कॉम्बिनेशन बना। कुछ करता हूँ, ठीक है? अब हमें सेल्स ऑफिस बनाना है, अब इसमें डिवीजन डिवीजन मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया हूँ तो मेंशन करता हूँ। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ए एम बी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हमारा है तो है हमारा, ये था हमारा वाई हैश एंड क्या था हमारा आर, तो ये है के साथ था हमारा तो ये हमने यहाँ पे मेंटेन किया। और ये अब ये नीचे जो ये टी कोड देखना है ओ बी एक्स, आप डायरेक्ट इस टी कोड के थ्रू जाकर, अब इसकी मैं कलर चेंज है, तो मुझे अपने यहाँ पे कोड जो है इसका नीचे है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या बनाना है हमें, इसके बाद हमें बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये हो गया। अब आपको डिवीजन बनाने हैं एंड आपको सेल्स ऑफिस
आपको पे बन जाएंगे, बाकी डिवीजन जो बनेगा वो आपको अलग। अब यहाँ पे मेंटेन सेल्स ऑफिस सेल्स ग्रुप की दोनों चीजें, मैं यहाँ सेल्स ऑफिस बना रहा हूँ। तो ए एन सेल्स ऑफिस या ए एन डी जी, तो इस ऑफिस इसमें हमें फिर से डिफाइन करना पड़ेगा वो सारी चीजें। ठीक है, इसी बात है। इसमें सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, बट ये जो आप देख रहे हैं कंट्री और ये जहाँ पे टिक लगे होंगे वो मैंडेटरी है, ये आपको डालना है। अगर आप उसे आप नहीं फिल करेंगे ये क्रिएट नहीं, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी रहता है इसमें से। ये हमारा एक सेल्स ऑफिस है। एक मेरा बस आप जितने भी ऑफिस बनाना चाहते हैं आप आप कर दीजिए। सेल्स ऑफिस आपने बना दिया, आपके ऑफिस मैंने सेल्स ऑफिस can be seen. AMDG और AMDM एक और हम इसे क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास दो सेल्स ऑफ
यहाँ पे कोड चेंज तो ये हमारे मेमोरी तो अब हमारे पास दो ऑफिस हो गए सर, दो बना दिए, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स ग्रुप बचे, इसको हम बनाते हैं। सेल्स ग्रुप भी हम उसी नाम से बनाएंगे जिसके बारे में बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने सोलर एनर्जी की तरफ ठीक, तो दो तरह के बिजनेस हैं। ये सारी जो कस्टमाइज रिक्वेस्ट है, आप जब हम डेवलपमेंट सर्वर पे आप फिर उसको अपने टेस्टिंग सर्वर पे ले जाओ, फिर आप ये सारी चीजें फिर हम प्रोडक्शन सर्वर पे दे। मैं यहाँ पे अपडेट करती ये हमारा एम वन है, एम टू ये अपडेट करते हैं। एम टू का है हमारा इसी दूसरा है हमारा ये दो हमारे पास। अब हमारा इसमें एक चीज बच रहा है, वो क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने बना लिए थे। अब हमारे पास बच रहे एरिया बना लिया, सर्च ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उसके बाद हमने आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया था। ये डिवीजन बचा था, ये डिवीजन हमने बनाया, ठीक है। डिवीजन बनाने के लिए कहाँ पे जाना है आपका, आप आते हैं फिर अब इसमें आप इसको क्या बात करेंगे। अब डिवीजन जो बनेगा उसको अंत बनेगा वही अंत में। इसको कंप्लीट कर लिया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं लिमिटेड इसमें चलते
ये जो स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे हमने बना दी बनाना है मैं ठीक है यहाँ पे हम ठीक है नॉट सेमेस्टर हम लोग यहाँ कितने सबसे पहले हम डिवीजन डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइज एसटी वाला पार्ट था इसमें आए अब यहाँ पे हम डिवीजन क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा कहाँ बना था अब देखिए यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट आप देखेंगे फ्लो चार्ट में पहले हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जगह बन रहा था बट ये डिवीजन अलग है ठीक है तो अब हमें तो डिवीजन जो मैं डिफाइन करूंगा सेम उसी तरह से डिफाइन करूंगा ए एंड बी में आप यहाँ पे देखो दो ही डी का बनेगा देखना पड़ेगा क्या कॉम्बिनेशन है ठीक है ठीक है आने के बाद यहाँ find किया अगर मैं सेम ही डाल दूँ तो मैंने पहले डाला था आई हैज ऑलरेडी आई हैज है ये नहीं है तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे ए एन डी ए एन डालता है ए एन डी ऑल्सो यूज है क्या करना पड़ेगा तो डाल वाई और क्या हमने लिया था आर एस लिया ले लेते हैं ये ऑलरेडी वन and also has एक्टिव सर्वर की ये प्रॉब्लम है क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो बने हुए हैं यूटिलाइज पे ओपन ये जेड आई से आई आई सी आई डब्ल्यू बना रहे हैं तो ये डिवीजन है मैं इसको लिखता हूँ डिवीजन मतलब डिवीजन है या आप ये बोलिए डिवीजन आज सर्वर में लगी है वैसे ये कभी कभी डब्ल्यू
जस्ट मैं इसका रीजन जो अवेलेबल है, वाई इज नॉट अवेलेबल, तो वाई डब्ल्यू हमने क्या एक्स, वाई एक्स का एक्स यूज वाई पी ये हमें चेक करना है। अब तो हम डिवीजन वन हो गया, हम डिवीजन टू जाए। तो हमारे डिवीजन इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट एसडी का जो स्ट्रक्चर बनना वो बना है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, स्ट्रक्चर बनाया है, अभी असाइन नहीं। तो आज मैं यहीं पे रखूंगा, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने, तो आप ये सेक्शन देख रहे हैं, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया एसडी का, और ये सेक्शन का। अब हमारा ये सेक्शन बचा हुआ है, एमएम का बचा हुआ है। फिर इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को लिंकअप बनाना है, को असाइन करना है, ये सारा प्रोसेस ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। आप देखेंगे कि वीडियो ऑलमोस्ट आपका मोर देन 1 आवर से ज़्यादा का, इसीलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे में कंटिन्यू करूँगा। आपको वीडियो जो आएंगे यूट्यूब पे वो सीक्वेंस में आएंगे, तो और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में ही ये वीडियो होगा, क्योंकि हमारा चैनल ही हिंदी में है। कि मैं चाहता था इंग्लिश में, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कैसे, वो मैंने ऑलरेडी आपको तरीका बताया। अब मैंने यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये बनाया था, डिवीजन मैंने जो बनाए वो यहाँ पे मैं मेंशन, तो डिवीजन जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जो मैंने बनाया थे डब्ल्यू आई डब्ल्यू वाई एंड वाई, हमारा आई डब्ल्यू एन, आप इसको एक्सेल मेंटेन, तो आप भूल जाओगे, फिर आप इसको मुश्किल हो जाएगा फिर याद। इसको आई डिवीजन वाई डब्ल्यू, हम लोग हमने आज जो एसडी का काम था वो निपटा दिया। उसके बाद किसका काम था, हमने एफआई का काम है। अब बचा है हमारा एमएन का काम, वो सेल्स एरिया डिफाइन करना, डीबीएम भी कर लिया था। ये हमारा काम मतलब कंप्लीट हो चुका है। मैंने हाईलाइट किया है आज, इतना हमारा काम हो चुका है। दैट मीन्स हमारा एफआई और एसपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिर्फ हमने क्रिएट किया बनाया है। अब इसकी असाइनमेंट बची हुई है, तो वो हम लोग अगले सेशन में देखना है। तो